Open your book and copy. Today we are going to complete the question answer of chapter 13. Today we are going to complete the question answer of chapter 13. I think all of you completed up to question number 4. List 4 features of your state that you admire. Give 2 reasons in support of your answer. I think from WhatsApp group all of you are completed. मैंने WhatsApp group में picture send कर दिया था. Okay. किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम है? Anyone wants to ask something? If you want to ask something. Now everyone mute your phone so that we can start our class. Mute your phone everyone so that we can start our class. Yes, all of you have completed up to question number 5. So now we are going to do question number 6. Question number 6. In your opinion, why is there a difference in temperature on the mountains and desert? Write the question number 6 in your copy. We are in your opinion, why is there a difference in temperature and on the mountain? Question number 4 हो तो गया है. क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कल मैंने करवा दिया था. क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हम लोगों ने कल कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 6 अभी करेंगे. इन योर ओपिनियन नाउ आपको बोलने की जरूरत ही नहीं होगी. आप अपने फोन को म्यूट रखेंगे तो हम लोग क्लास इजीली कर पाएंगे. In your opinion, why is there a difference in temperature on the mountains and desert? ऐसा क्यों होता है? डेजर्ट और माउंटेन के टेम्परेचर में डिफरेंस क्यों होता है? Harshit Raj, unmute your phone. Unmute your phone. Yes, Harshit. Why is there a difference in temperature on the mountains and desert? No, it's Harshit who's going to give the answer. Harshit? Yes, Harshit. Harshit Raj, are you able to hear me? आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Am I audible to you, everyone? Now all of you mute your phone. Yes.
Vaibhav Raj, why is there a difference in temperature on the mountains and deserts? ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए. Yes, yes, yes. Good, good, Vaibhav. Mute yourself. Mute your phone. Daksh Anand. Daksh Anand. Siddhant Raj. Siddhant Raj. Yes. In your opinion, why is there a difference in temperature on the mountains and deserts? Try to give the answer. Just try to give the answer. आपकी आवाज ही नहीं आ रही है सिद्धांत, आपकी आवाज नहीं आ रही है. Okay, Siddhant, just mute your phone. Now I am going to share the screen so that you can write the answer. Yes. Now I am going to share the screen. Yes. Now here is the answer. Write the answer in your copy. The desert is a barren and sandy with very little rainfall. So it is very hot in desert, and on the mountains the temperature decreases with increase in altitude. संभव लक्ष्य, संभव लक्ष्य. अगर आप लोग को लगता है कि आप स्क्रीन पे कुछ लिखोगे और मुझे पता नहीं चलेगा तो आपको गलत लगता है. The desert is a barren and sandy with very little rainfall. So it is very hot in desert, and on the mountains the temperature decreases with increase in altitude. So it is very cold on mountains.
Yes, write the answer. When you complete the answer, just raise your hands. No need to say completed, ma'am. The desert is a barren and sandy with very little rainfall. So it is very hot in desert. And on the mountains, the temperature decreases with increase in altitude. So it is very cold on mountains. Just complete the answer and raise your hands. Complete your answer and raise your hand. The desert is a barren and sandy with very little rainfall. So it is very hot in desert. And on the mountains, the temperature decreases with increase in altitude. So it is very cold on mountains. No need to say completed, just raise your hands, class 4. I think all of you able to see the screen. Now complete your answer fast. I think all of you completed. The desert is a barren and sandy with very little rainfall. So it is very hot in desert. And on the mountains, the temperature decreases with increase in altitude.
So it is very cold on mountains. Just complete your work fast. Now we have completed chapter 13. All question answer will be, all question answer has completed. So we have completed chapter 13. Now everyone, if you have your book, open your book, page number 117. If you, I think all of you have your books. Open your book, page number 117. Page number 117. Page number 117. See, on a political map of India, name one state located in each physical feature. ठीक है, मैप स्किल में देखो, नेम वन स्टेट लोकेटेड इन ईच फिजिकल फीचर्स. जो फिजिकल फीचर्स है हमारे कंट्री का, उसका एक एक स्टेट बताना है. सो व्हाट इज द फिजिकल, which are these are physical features of India? The northern mountains, so the northern mountains, the northern plains, the Indian desert, the Deccan plateau and the island groups. ठीक है, ये सारे फिजिकल फीचर्स का एक एक स्टेट आप लोगों को बताना है. ठीक है, तो नॉर्दर्न माउंटेन का स्टेट क्या हो जाएगा? नॉर्दर्न माउंटेन्स किस स्टेट में होंगे? जम्मू एंड कश्मीर. यस, जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, तो आप यहाँ जम्मू एंड कश्मीर लिख लीजिए या फिर याद रखेंगे जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, फिजिकल फीचर, हर एक फिजिकल फीचर का एक एक स्टेट आप लोगों को बताना है. ठीक है, वन स्टेट लोकेटेड इन ईच फिजिकल फीचर्स. तो नॉर्दर्न माउंटेन्स का हो गया, जम्मू एंड कश्मीर. नेक्स्ट द नॉर्दर्न प्लेन्स. नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स का क्या हो जाएगा स्टेट? नॉर्दर्न प्लेन का कौन सा स्टेट हो जाएगा? फिर से बोलो, कोई एक बोलो, सारे बोलेंगे एक साथ तो सुनाई नहीं देगा. यस, नॉर्दर्न प्लेन का हो जाएगा उत्तर प्रदेश या फिर बिहार. ठीक है,
नेक्स्ट इज द इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट का हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट है द डेक्कन प्लेट्यू, द डेक्कन प्लेट्यू एंड द कोस्टल प्लेन्स। द डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू साउथ में है, साउदर्न प्लेट्यू के नाम से जानते हैं, डेक्कन प्लेट्यू और द कोस्टल प्लेन। इन सब के फिजिकल फीचर्स, इन सब के स्टेट्स आपको बताने हैं। नेक्स्ट है मार्क 5 नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। नेबरिंग कंट्रीज, इंडिया के 5 नेबरिंग कंट्रीज को आपको मार्क करना है। पाकिस्तान, चाइना, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, ये सारे इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज हैं, ठीक है। तो कौन ऐसे आवाज कर रहा है? आप लोग को बार बार बोलते हैं फोन को म्यूट रखेंगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। आप लोग सब बार बार फोन अनम्यूट कर देते हैं। नेबरिंग कंट्रीज पाकिस्तान, चाइना, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, ये सारे नेबरिंग कंट्रीज हैं इंडिया के। जब आप इंडिया के पॉलिटिकल मैप को खरीदते हैं तो इनमें से कुछ कंट्रीज वहाँ आउटलाइन दिख जाता है, ठीक है। तो पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया में नेबरिंग कंट्रीज को मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन द फॉलोइंग लैंड फॉर्म्स एंड ऑल्सो ड्रॉ देयर पिक्चर इन योर नोटबुक। ये जो लैंड फॉर्म्स हैं इन सब को आपको डिफाइन करना है। ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, माउंटेन, हिल, प्लेन, प्लेट्यू, डेजर्ट, आइलैंड। इन सारे लैंड फॉर्म्स को डिफाइन करना है और इन सारे लैंड फॉर्म्स के पिक्चर भी ड्रॉ करने हैं। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द स्टेट। गॉड्स ओन कंट्री केरला, एज यू नो दैट, आप सब लोग को पता है केरला इज नोन एज गॉड्स ओन कंट्री। अपने बुक में फिल कर लीजिए, केरला इज नोन एज गॉड्स ओन कंट्री। नेक्स्ट इज द पैराडाइज ऑन अर्थ, इट्स काश्मीर, ठीक है। काश्मीर is known as the paradise on earth. Next is the land of sunrise, it's Arunachal Pradesh, okay, land of sunrise Arunachal Pradesh. And land of 5 river, it's Punjab. ठीक है, गॉड्स ओन कंट्री केरला, पैराडाइज ऑन अर्थ काश्मीर, लैंड ऑफ सनराइज अरुणाचल प्रदेश एंड लैंड ऑफ 5 रिवर्स पंजाब। सो ऑल ऑफ यू कंप्लीटेड इट। इसको कॉपी में करने की जरूरत नहीं है, आप बुक में कर लेंगे और याद करेंगे इसको, ठीक है। आइडेंटिफाई द स्टेट, आइडेंटिफाई द स्टेट, ये आप लोग बुक में कर लेंगे और इसको लर्न करेंगे। डिफाइन द फॉलोइंग लैंड फॉर्म्स एंड ऑल्सो ड्रॉ देयर पिक्चर इन योर नोटबुक। ये आप लोग को लैंड फॉर्म्स डिफाइन मैं करवा दूंगी, ठीक है। ये मैं करवा दूंगी आप लोगों को, आज नहीं, रिवीजन करेंगे उसमें करवा देंगे, क्योंकि अभी टाइम ओवर हो जाएगा तो ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सो वी हैव कंप्लीटेड, हमारा पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया। वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 13। अब क्या करना होगा? हमने अपना सेकेंड टर्म का पोर्शन कंप्लीट कर लिया, तो अब क्या करेंगे? लर्न करेंगे और रिवीजन करेंगे।
तो कल से हम लोग एक एक चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अभी चैप्टर 13 या अब तक हमने जो भी पढ़ा, किसी को कुछ पूछना है? आप लोगों की आवाज ही क्लियर नहीं आ रही है। जस्ट म्यूट योर फोन एवरीवन। एक साथ बोलेंगे तो आवाज सुनाई देगी। See the page number 118. Complete the following table. Here is the name of some states. You have to write the direction of these states, the popular food of these states, the popular dance of these states, and languages of these states. ठीक है, ये पेज आपका होमवर्क होगा। पेज नंबर 118, इट्स योर होमवर्क। ओके, आपको करना ये है कि इन सारे स्टेट्स का डायरेक्शन आपको लिखना है कि ये किस डायरेक्शन में है। उसके बाद उन सारे स्टेट्स के पॉपुलर फूड को लिखना है। उसके बाद उसके डांस को लिखना है। हर स्टेट का अपना एक पॉपुलर फूड होता है, एक पॉपुलर डांस होता है और वहाँ का अपना एक लैंग्वेज होता है। जैसे कि बिहार का लैंग्वेज क्या है? हिंदी, भोजपुरी। हिंदी है, भोजपुरी है, बिहार का लैंग्वेज है ना, हिंदी है, भोजपुरी है। उसके बाद पॉपुलर फूड हो गया लिट्टी चोखा। यस, लिट्टी चोखा। तो इसी तरह से आप लोगों को इन सारे स्टेट्स के डायरेक्शन को लिखना है। उसके बाद फूड, उसके बाद डांस एंड लैंग्वेज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, गिवन बिलो आर द पिक्चर्स ऑफ सम एमिनेंट पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया। दे ऑल हैव मेड इंडिया प्राउड. Write the names of 4 Indian gems. नहीं, बुक में ही करना है। ये जो आपको यहाँ करना ये है कि ये जो पिक्चर है ये सीवी रमन का है, ये जगदीश चंद्र बोस का है, हरगोविंद खुराना, विक्रम साराभाई एंड नेक्स्ट इज एस रामानुजन। ठीक है, ये सारे जो हैं, ये सारे पर्सनालिटीज जो हैं, उन्होंने कुछ अपने अपने फील्ड में ऐसा काम किया है कि उन्होंने इंडिया के नाम को रोशन किया है, इंडिया को प्राउड किया है। आपको 4 और ऐसे पर्सनालिटीज का नाम लिखना है, ए बी सी एंड डी, और ऐसे 4 पर्सनालिटीज का नाम लिखना है जो कि इंडिया के पर्सनालिटीज हैं और वो इंडिया को प्राउड फील कराए हैं। अपने अपने फील्ड में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज द कंप्लीट द स्टेटमेंट, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन बिकॉज। आप लोग इंडिया में रहते हैं एंड यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सो दैट यू कैन प्राउड टू बी एन इंडियन। और वो क्यों प्राउड होता है आपको वो कुछ सेंटेंस में लिखना है। ठीक है, डू पेज नंबर 118, इट्स योर होमवर्क। So we have to end this class.